So, hi, good evening, everyone. I think I can see around 1 2 people. That is very good attendance, even it's a Monday still. Right. So, we are just starting. Let me connect my Floravium. Alright. So, I hope I'm audible without any problem. Right? All good? That is wonderful. Let me connect my earphones. So most probably will be a good audio quality. Okay, so all good. That is wonderful. Fine. So let me revise what we have done in the last session so that we can take it from there. So hopefully it will be all set and all fine. Okay. So what we have done, we discussed about the user management thing. Okay. In the next, and we are using user add command, and user add command is referring that file, that is login.defs, to create a user. Let's say you are creating user 1, then it is referring that file, and there is number of policies are written, right? And these policies are basically responsible for number of things. Okay, we have seen 10 different changes by user add command, and the first file we have seen was etc passwd file. The second file we are looking for is etc shadow file, right? And shadow file we have started, and now we need to discuss more about it. Okay, so I believe there will be no problem for anyone. All right. So till now everything is fine. Now this file is very important for security purpose. Okay, so if you are looking for password authentication and security here, like password authentication and security for here, then you can try to understand this file. Okay, so we tried with the first field. The first field was username, then second field was actual password, if you remember the same, and this actual password was stored in a salted hash format. Salted hash, and that salted hash we were using by using SHA 512 hashing algorithm. Fedora also supports SHA 256, 128, MD5, and many more. Okay, so these were the two different things that we used. Okay, so first and second fields are, I believe, all fine for everybody, right? So there will be no problem with the first and second fields. Now moving back to the third one, that is very important. I think we have seen the same. So if you just open etc shadow file here and look at the third number, that is some 18,466. So I think we have discussed this one also. So 18,000 whatever it is, or 466,
right? 466. So this was number of days since लास्ट पासवर्ड चेंज। ओके, मतलब ये है कि आपने पासवर्ड कब चेंज किया था। इसका मतलब अगर आप समझना चाहें तो आपने पासवर्ड कब चेंज किया था, दैट इज द थिंग। ओके, एंड ये 18,000 जो भी दिखा रहा है ये कब से है, डेट ऑफ Jan 1, 1970। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक हमने कर लिया था। So if it is all set for everyone, username, actual password and the number of days since last password change, अगर ये सब कुछ सही है तो give me response by saying yes or the way you want to respond। तो इसके आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। For your kind information मैं आपको बता दूं कि ये फाइल is very very important for hacking purpose। ठीक है, अगर आपको किसी का सर्वर मिल गया तो आप इस फाइल में बहुत कुछ ऐसा ट्यून कर सकते हैं जो आपको नंबर ऑफ चीज़ें दे देगा। ठीक है, ऑलराइट। सो दीज थ्री फील्ड्स आर वेरी वेरी मच ओके। आप सब बहुत स्मार्ट हैं, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट फील्ड, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ फाइल्स को तो ये है 0। ओके, now what is the meaning of the field number 4th? The meaning of field number 4th where the number 0 is written, इसका मतलब होता है minimum number of days to change the password। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करें। तो फर्स्ट वाज अ यूज़र नेम, सेकेंड वाज पासवर्ड, थर्ड वाज नंबर ऑफ डेज सिंस लास्ट पासवर्ड चेंज एंड फोर्थ फील्ड जो है इसको बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन दैट यूज़र कांट चेंज द पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल यूज़र, लेट्स से यूज़र 1, दिस यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड बिफोर 2 डे, यानी इसको डे 1 डे 2 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू चेंज द पासवर्ड, इसके पहले कर ही नहीं सकता। लेट मी शो यू अ डेमो फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट लाइन में गया and this is my test3 user, right? So I'm supplying test3 को मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, let's say QQ। ओके, ये मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड मैंने चेंज किया अभी and I'm going into shadow file and in this field जहाँ पे लिखा है 0, ठीक है, 0 मतलब है कि ये पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बट व्हाट इफ़ आई राइट लेट्स से 2, इसका मतलब है कि आज और कल इन 2 दिनों में ये यूज़र अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। रूट कैन डू एनीथिंग क्षितिज, राइट? रूट के पास ऐसे सारी पावर हैं, ये नॉर्मल यूज़र की बात हो रही है। रूट कैन डू वॉट एवर रूट वॉन्ट। ओके, सो टेस्ट थ्री यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड विद इन 2 days, मतलब 2 दिन तक ये पासवर्ड तो चेंज नहीं कर पाएगा, उसके बाद ही कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट लॉग इन टू test3, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया एंड उसके बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ पास wd कमांड से, ठीक है, मैं पासवर्ड दिया। सी what you need, what you get, you must wait longer to change your password। See, मैं नहीं कर सकता सिंपली,
सो टेस्ट यूज़र टेस्ट 3 मैंने लॉगिन किया, राइट। मैं वापस दिखा देता हूँ। आई एम लॉगिन विद टेस्ट यूज़र 3 and now I'm trying to change password of my own। current password डाला, you must wait longer to change your password। ठीक है, तो इसके पहले आप पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते। यस आलोक। सो अब 2 दिन क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे द डेट इज़, आज हमारे पास जो डेट है, डेट कैसे देखा जाए, टाइम कमांड से या, ठीक है, yum install busy box, राइट। तो अगर आप अपने सिस्टम का टाइम चेंज करो, जैसे यहाँ पे 27 जुलाई और 5:47, अगर आप ये चेंज कर दोगे, राइट, तो वहाँ पे आते हैं। ठीक है, और क्षितिज आपके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आज के सेशन में मिल जाएगा अपने आप। ऑलराइट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट वाली फील्ड समझ में आ गई होगी। अगर आपने नंबर 2 लिख दिया है, दैट मीन्स अ नॉर्मल यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड विदाउट दैट लिमिट क्रॉसिंग। तो वो 2 दिन पहले वेट करेगा, फिर ही वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो लिनक्स सर्वर में अप्लाइड है। ओके, सो टेक्निकली यू आर अलाउड टू चेंज पासवर्ड इफ़ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट अगर आप एडमिन नहीं हैं तो आप वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ बिजी बॉक्स डेट। ठीक है, मेरे पास अभी क्या है, टाइम है और 27 जुलाई इतना। मैं इसको डेट को चेंज कर देता हूँ, हाइफन सेट, लेट्स से जुलाई 30 और 17:50 और साथ में 2020। ठीक है, नो शिट। ओके, तो शायद मुझे ऐसे करना पड़ेगा, या फिर मैं ग्राफिकल चेंज कर सकता हूँ। सो जुलाई 30 17:50 2020। ठीक है, तो बिजी बॉक्स के बारे में छोड़ देना, अभी क्या है ये, अभी मेरा टाइम हो गया 30। तो नाउ आई ट्राई टू, मैंने ये ट्राई नहीं किया बट देख लेते हैं, टेस्ट 3 एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज माई पासवर्ड बैक क्यू सी। अभी इसने वही दिखा दिया क्योंकि टाइम यहाँ पे चेंज होने में टाइम लगेगा। सी 27 जुलाई स्टिल, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट जैसे टाइम अपडेट होगा पूरा एनटीपी के हिसाब से तो वो हो जाएगा। कुछ रीज़न है आशिफ, कुछ पैकेज मैंने हटा दिए थे किसी रीजन की वजह से। ऑलराइट, सो एनीवे, but this field you all are understanding, right? So if you write that number, let's say 2, तो 2 दिन तक तो यूज़र को वेट करना पड़ेगा जब से उसका पासवर्ड चेंज हुआ है। जैसे आज से 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा तो उसको तभी पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑल राइट, यस और नो? सो जस्ट गिव योर रिस्पॉन्स इन द चैट विंडो अगर आपको ये वाली फील्ड समझ में आ गई तो। ओके, सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हेयर। इस फील्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टिल देयर इज़ अ कंफ्यूजन, यू कैन लेट मी नो कि हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन फिक्स इट फॉर यू। फाइन, ओके ग्रेट, सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, सो नो वरीज। ओके,
नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपके पास, मेरे पास एक दूसरा सर्वर है, वहाँ पे भी रेस्ट कर देता हूँ। जी सर, आ गया समझ में। एक और चीज़ है, अगर आप सेकेंड फील्ड की बात करें जहाँ पे पासवर्ड था, सो अगर आप यहाँ से पासवर्ड हटा दें, जैसे मैं ये पूरा पासवर्ड एम्प्टी कर देता हूँ, यानी एम्प्टी कर दिया, राइट। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट एम्प्टी, मेरे पास पासवर्ड है ही नहीं। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू log out and let's say switch it back, तो कॉलन मैंने छोड़ दिए थे एंड रेस्ट आई एम डूइंग, क्या नाम था, test3 की बात, test3 सी। तो यूज़र अपने आप लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फेडोरा में थोड़े से इश्यूज़ हैं GUI को लेके, बट नो इश्यूज़। सी, तो इफ़ यू रिमूव दैट फील्ड जहाँ पे पासवर्ड लिखा था, तो यूज़र test3 विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन। तो मैं इसे वापस से लॉग आउट कर देता हूँ, राइट। सो अगर आपने पासवर्ड रिमूव कर दिया है तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन फ्रॉम दिस लॉगिन कंसोल। ठीक है, आई एम लॉगिंग बैक, राइट। तो सेकेंड फील्ड में भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, एंड इफ़ यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि पासवर्ड कैसे हटाएं हम, राइट, हाउ टू रिमूव दैट password field, तो what you can do is you can use command line। तो अब जैसे कमांड लाइन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम असाइनिंग पासवर्ड टू test3 एंड सम पासवर्ड, राइट, एंड यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप उसे कैसे हटाएंगे। सो टेल -1 etc shadow password is there, you can use passwd-delete and the यूज़र का नाम। इफ़ यू डू दैट तो यहाँ से पासवर्ड अपने आप हट जाएगा। सो इफ़ यू डोंट वांट टू रिमूव इट फाइल के में अंदर जाके, तो यू कैन यूज़ -d ऑप्शन, इससे पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी मच अप टू यू, you want to open that file and delete it, or maybe you want to backspace। एक और चीज़ है, if you want to lock that user, so -l, तो इसके पास पासवर्ड है भी, जैसे आपने पासवर्ड दिया password test3 1 2, ठीक है, देन यू लॉक इट। अब हमने इसे लॉक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़र ग्राफिकली या कैसे भी लॉगिन भी नहीं कर पाएगा। तो पासवर्ड है भी, बट आपने लॉक कर दिया। कभी कभी होता है ना कि आपका सर्वर हैक हो गया, राइट, एंड आप पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते। ये मैं लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई सर्वर है एंड सर्वर हैक हो गया, बट आप पासवर्ड नहीं चेंज करना चाहते। द रीज़न इज़ वो पासवर्ड काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, तो एप्लीकेशन फेल हो जाएगी। तो आप उस यूज़र को लॉक कर दो। जब लॉक कर दोगे तो कोई भी यूज़र SSH या ग्राफिकल या कमांड लाइन के थ्रू ट्राई करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लॉक करना इज़ अ वेरी मच सेफर पॉइंट अगर आपका सर्वर हैक हो गया तो अटैक से बचने के लिए, राइट। सो अच्छा ऑप्शन है। एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, शैडो फाइल। ठीक है, अगर मैं वापस से अनलॉक करना चाह रहा हूँ, सो आई कैन यूज़ passwd-L, सॉरी -U टू अनलॉक। तो लॉक करने के लिए स्मॉल l, एंड जस्ट टू अनलॉक इट यू कैन यूज़ -U टू अनलॉक। इससे ये अनलॉक हो जाएगा, राइट। सो सिंपली I have given this option also and this option also, ignore that 698 वाला। तो ये काफ़ी इजी है, मतलब काफ़ी अच्छा है।
and in the next examination you will be getting a lot of questions about this, right?